So team today, guys, so today we will talk about P2P cycle, right? How a complete P2P cycle run, right? Till now we have learned about PR, PO, right? And PR document type, PO document type, right? Correct. Now today we will go for a complete P2P cycle as a end user. How to get a PR, then PO, then GRN, then invoice. Okay, we will go for that. Now let me go into SAP. Slash N ME51N, right? As a T code to create a PR, correct? Let me go ahead. So the same document, okay? I will go ahead one by one, okay? We learned PR, PO, right? We learned already this thing. Now we'll go from starting P2P cycle complete, correct? P2P cycle complete. Fourteen. First thing, what is that? PR creation, right? Let me write in that way. PR, PO, GRN, and invoice. Now we'll go step by step. Step one. Step one. Create PR, correct? T code is ME51N controllers. Now here I'm creating a new PR. Enter material here, right? 15. Quantity, let's suppose 20. Plant, BAT 0. Delivery date, I can go here. Enter that. Group, go here. Enter anything. Group 1. Press enter. Enter purchasing group. Press enter. No error, right? So we can create a PR now, right? First step is what? Create a PR. We already know how to create that PR, right? Correct, guys? I have already told you many times how to create a PR, but again we are learning how to create a PR. So first step to create a PR. That is the first step. Click on save. Go here. Click on save. Now go ahead. Save this. PR is created. So our first step is done. Purchase requisition created successfully. ठीक है अभिलाष भाई, संदीप सर. Yes. Any doubt here? Yes, yes. But the first step, we have created a PR. Now, PR created successfully, right? Now create step second, right? Create PO. Go ahead. मैं PR को ओपन कर लेता हूँ. ये मेरी PR है, ठीक है? कॉपी कर लेता हूँ. Now second step I told you, we need to create a purchase order, right? /n ME21N, right? That is the T code to create a PO, correct? Here enter supplier and here enter purchase organization, that is BACP for my vendor. Purchasing group 001, and here if I scroll right, here I will get the option to enter the purchase requisition. Here it is. Enter purchase requisition, right? And press enter. Understood? So now what we are doing? We are creating a PO
based on the PR. Correct? This is what we are doing only. Correct or not, Sandeep sir, Ablas bhai? And out till here? Yes, correct. Yes, Yes, yes. We क्या करेंगे? We simply enter the vendor. We enter the required data to create a PO. What we entered? These details. BACP 001 BAGP, right? These are all the details that we entered during PO creation. And what we entered here? Purchase requisition, right? Now you can save the data. One more thing I will tell you. So here, now one more thing. If you are purchasing something, right? Definitely some tax code must be there. Correct or not? आप कुछ परचेज करते हो, whenever you're purchasing something, some tax should be applied. Correct or not? Correct. So now in PO itself, when you go item details, right? You go here, they tab invoice, right? You go here. Here is one option, tax code. So here you need to go and you need to enter some tax code. Tax code will be created by whom? Finance team, FICO team, right? They will be creating the tax code and the tax code must be available here. Let me give some example. For an example, somebody is creating a PO and he's purchasing something, right? Then he must be aware which tax code need to be applied. So end user को पता होगा, he must be aware what tax code need to be applied for this material, right? Understood? So accordingly, what he will do? He will go here and he will select the tax code. I have already created tax code for my purpose as B. आपको बता दूंगा, right, how to create tax code. Although it does not come under MM scope, but I will tell you how to create tax code as well. Okay. Currently मैंने बना रखा है SB, तो you can select SB also. Okay. Select that. Tax code क्या है ना, आपका लगता है 5% 10%, right? Correct? Abhilash bhai, are you getting it? What I'm trying to say? You are purchasing something, so some tax code must be there or not? कोई टैक्स लगता है ना कुछ परचेज करते हो तो 12%, 18%, IGST और SGST, CGST. Correct? Abhilash bhai, are you getting this point? Manisha? Yes. अभिलाष भाई, कोई डाउट है यहाँ पर, कोई क्वेरी है? समीर? Yes, sir. यहाँ पर कोई क्वेरी है आपकी? No, 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 sir. Getting it. अभिलाष भाई हैं क्लोज, कॉल पे चले गए? मैं हूँ। अभिलाष भाई, कोई क्वेरी है यहाँ पर, मुझे बताओ. नहीं यहाँ नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी परचेज कर रहे हो ना, तो वहां पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, राइट? लेट सपोज मैं कंपनी का, राइट, आई एम परचेजिंग समथिंग, राइट? लेट सपोज आई एम गेटिंग दिस पीओ, आई एम परचेजिंग सम आइटम, राइट? तो डेफिनेटली सप्लायर तो बेच रहा है, राइट? वो तो कोई टैक्स नहीं देगा ना. वी आर परचेजिंग समथिंग, राइट? तो बोलेगा भाई इसमें टैक्स लग रहा है कुछ. करेक्ट? वी हैव टू पे दैट टैक्स. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर टैक्स कोड मैंने बना दिया है एसबी. यू कैन यूज सेम टैक्स कोड एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स. करंटली आई विल टेल यू इसका यूज किया, बट अभी नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, राइट? टुमारो. जीआर बेस्ड इनवॉइस. नाउ just save the PO. Go here, go here, click on save button. So these things we already know, right? These things we already know, how to get a PR, how to get a PO, but I told you one new thing, right? How to enter a tax code, correct? And it is available in invoice tab. Understood? Now once PO is done, now what is the next thing? Next thing after PO, next thing is to receive the goods. अब सिंपल सा पीओ बन गया, ऑर्डर चला गया वेंडर के पास में, वो क्या करेगा? गुड्स को डिलीवर करेगा ना. ये मेरा पीओ बनेगा. करेक्ट? व्हाट विल नेक्स्ट स्टेप नाउ? नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रिसीव द गुड्स. उसको हम बोलते हैं गुड्स रिसीव, GRN, गुड्स रिसीव नोट. मैं क्या करूंगा नाउ? स्टेप 3, गुड्स रिसीव्ड. टी कोड इज मीगो. मैं यहाँ भी टी कोड लिख देता हूं. ME21 and now let me go ahead. Now my PR is done, my PO is done, right?
Now next step is to receive the goods. T code क्या बताया मैंने? Migo. Go here. Now in Migo, here you have to select. अभी आपको जितना बता रहा हूँ, right, try to grab that thing only, right? Rest we discuss one by one when we will go for the inventory management. Now I will tell you each and every point. Return delivery, cancellation, display, release year block stock, subsequent delivery, right? Goods issue, transfer posting. I will tell you meaning of each and everything, and we will do the practice as well, right? For each scenario. Currently, I'm telling you, just select goods received from here, drop down list, and here select purchase order. And here select movement type. We call those as a movement type. Movement type plays a very crucial role in inventory management of it. To receive our goods, to issue our goods, right? To return the delivery and everything. So movement type एक crucial role play करते हैं in SAP. Okay. अभी currently आप एक चीज याद रखो बस, हमें क्या करना है? We have to select goods received. Here we have to select purchase order, and here we need to enter our purchase order whatever we have created. क्योंकि आप जो goods receive करोगे, whatever goods receive you are going to do, you will do against the purchase order only. Correct? So what you will do? Go here. यहाँ पर आप डालोगे PO number. तो ये आपको मैंने क्या बताया है? Simple 4 things I have told you. First thing, select goods received from first drop down list. Then select purchase order. Then enter your PO नंबर जिसके अगेंस्ट में आप गुड्स को रिसीव करना है. सिंपल सी बात है, आपने गुड्स आपने PO बना के दिया, राइट? तो उसके अगेंस्ट में ही तो गुड्स रिसीव करोगे कि भैया आपने ये ऑर्डर दिया था और इसके अगेंस्ट में मेरा ये PO नंबर है. करेक्ट? हियर आई टोल्ड यू करेंटली जस्ट रिमेंबर मूवमेंट टाइप 101 कि अगर मुझे गुड्स रिसीव करनी है अगेंस्ट PO, मूवमेंट टाइप मेरा क्या होगा? 101 होगा. अभिलाष भाई क्लियर है दिस पॉइंट? ये सिंपली सी दिस इज एंड यूजर एक्टिविटी. As a consultant, you will not do anything, but you should have understanding of Migo and everything, right? How it is happening in the system. If they come to any issue, they will reach out to you only. If we are getting the issue, please resolve this, okay? If you do not know about end user activity, right? How you will be expert in SAP, right? You will not able to resolve the error. Understood? To solve the issue or ticket of end user, you need to be understand first their issue, right? And you will able to understand the issue only when you have worked as an end user. Correct? Then only you will have to get to know what issue is coming. Just because before resolving the error, you must understand how the cycle works, right? How Migo happens. What are the things that you entered during Migo? Correct? Control S. Now, once you enter PO, now press enter. When you press enter, automatically everything will come from the PO. Okay. Scroll down. Here you have, right, in where tab, material tab you go, right? Here you will get material number. That my material number was 15. Then quantity. So we ordered for 20 quantity, right? Even you can receive parcel quantity as well, right? You want to receive 10 quantity only, you can receive it. Then where system will ask you to enter the store location. At which store location you are receiving your material. And here there is one checkbox item. Okay, that you also need to purchase order data, PO number, right? किस PO के अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हो? गुड्स रिसीव कर रहे हो. क्लियर है? Two things you are doing here, right? Let me write down here. Press enter after entering PO. Now enter the storage location and click on item check. Control S. Okay. So now what I will do, I will go here. मैंने क्या किया? स्टोर लोकेशन डाल दी है और मैंने क्या किया है? ये आइटम चेक होगा, इस पर क्लिक किया, आइटम ओके, राइट? Two things I have done. Okay. Now let me take a screenshot of this.
store location, click on item. Okay, correct. Now check if there is any error. Control S. Now I will check if there are any errors. What I will do, I will go here, click on this button, right? Check. कोई error तो नहीं आ रही है? Let's check that. Document is okay, no error, correct? ठीक है संदीप सर, समीर, अभिलाष भाई, Manisha. So we check that there is any error, right? So we have clicked on that checkpoint and we saw there is no error. Document is okay. So it means now we can post the document. Click on post as there is no error. अगर यहाँ पर कोई error होती ना तो सिस्टम मेरे को error मैसेज देता, this is the issue, right? You cannot save the document. But अभी कोई error नहीं है, so there is no error. So in that case, I can save the document. What I will do, I will go and I will post this. Post the document. Done, right? Material document 136 posted. इसका मतलब मेरा document successfully post हो गया. So what I did, I just received the goods in the system. मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने GRN किया है, goods received नोट किया, राइट? सिंपल सी बात है, उसको रियल टाइम में समझो कि भाई आपका प्लांट पर जैसे आपने वेंडर को ऑर्डर दिया, राइट? पीओ के थ्रू, करेक्ट? मुझे इतना ऑर्डर चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए इस पीओ में, राइट? इस वेंडर से व्हाट दे विल डू, they will send the material, right, at your plant, whatever location is mentioned in the PO. किस प्लांट पर इस स्टोर लोकेशन में जाना है. Then truck will be there at your plant. Then somebody will be there at store location, right? मतलब जो बंदा बैठा होगा स्टोर पर, जो प्लांट पर बैठा होगा, he will ship the goods. वो वहां से कोई बंदा अनलोड कर देगा, वो गुड्स को काउंट कर लेगा और सिस्टम में एंट्री डाल देगा एक तरीके से, राइट? एसएपी में इस पीओ के अगेंस्ट में हमने इतनी क्वांटिटी रिसीव की है. क्लियर है? और डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा. अभिलाष भाई, गॉट इट और नॉट? संदीप सर, अभिलाष भाई, मनीषा, yes clear. इसमें कोई डाउट है? Now how you can see this document, right? जो हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, फर्स्ट वे, गो टू मीगो ओनली. अब मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है, मुझे इस डॉक्यूमेंट को देखना है, ठीक है ना? हाउ कैन आई सी इट? गो टू मीगो, राइट? गो टू मीगो और मुझे क्या करना है, एंड गो टू डिस्प्ले मोड एंड एंटर द डॉक्यूमेंट, करेक्ट? मैं क्या करूंगा, अभी मीगो पर गया मैं, राइट? हियर आई एम. रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर क्या है? 136, करेक्ट? तो मुझे देखना है भैया डॉक्यूमेंट नंबर मैंने पोस्ट किया है, उसको मुझे देखना था. गो टू डिस्प्ले, राइट? ऑटोमेटिकली आ गया 136 नंबर, राइट? ये डॉक्यूमेंट नंबर ही पोस्ट हुआ था मेरा. प्रेस एंटर. सो दिस इज व्हाट यू हैव पोस्टेड, राइट? आपका ये मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है, इसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड डॉक्यूमेंट. क्लियर है? इसका एक तरीका और है, यू कैन गो टू पीओ. अभी हमने मीगो कर दिया है ना, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली one tab will be generated automatically in PO that I will show you right now. Second way, go to PO and once you do the GRN, one tab by name, purchase order history will be generated in PO automatically, and
you can find the every document in that tab that you perform against that PO. मेरा क्या मतलब कहने का, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे अगेंस्ट दैट पीओ ना, तो ऑटोमेटिकली वन परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली इन पीओ, और वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, आपने गुड्स रिसीव कर रखा होगा वो, और वॉट एवर एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग यू विल एबल टू सी ऑल दो थिंग्स इनटू वन टैब. ओके, दैट आई विल शो यू राइट नाउ. तो अभी मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल गो हियर. मेरा पीओ यही था ना, पीओ नंबर मेरा, करेक्ट. अभी तो यहाँ पर देख रहे आप, राइट, देयर इज नो समथिंग टैब लाइक परचेज ऑर्डर हिस्ट्री. नाउ जस्ट रिफ्रेश दिस. डन. नाउ स्क्रॉल डाउन. नाउ सी, एक टैब आ गया अभिलाष भाई एंड संदीप सर, जसीम. सो वंस यू डू द जीआरएन ऑटोमेटिकली टैब जनरेटेड. ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट नंबर, राइट. तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे अगेंस्ट दिस पीओ, यू विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर इन परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब. ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. कब होता है, जब जीआरएन करते हो ऑटोमेटिकली हमारे पास पीओ में एक जनरेट होगा, हमारे पास एक टैब, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब. आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू कैन गो टू दिस डॉक्यूमेंट 136, राइट, और यहां से भी आपको विजिबल हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन दिस and do this, and automatically system will take you to the same screen, right. आपका डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा डिस्प्ले मोड में. either directly in Migo screen you can open this document, or you can open the PO, go to the purchase order history tab and you can open this document. Any doubt here? Anybody has any doubt here? समीर, कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर एकदम. No, sir. अभी इसमें ना आपकी मैं क्लास और लूंगा, राइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इन पी, जस्ट बिकॉज देखो ऐसे भी लगता छोटा सा है, बट पता है पीआर, पीओ, जीआर और इनवॉइस इसमें ही खेल जाते हैं, राइट. इंटरव्यूअर ना इसमें आपको मतलब उसको बाहर निकालना होगा ना, राइट. ही विल आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पीओ, फ्रॉम जीआर, जस्ट बिकॉज एवरी फील्ड हैव सम मीनिंग. जितनी फील्ड आप देख रहे हो पीओ में ना, एवरी फील्ड हैव सम मीनिंग, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड. इसका क्या मतलब है, क्या यूज होता है, ठीक है ना. अंडरस्टूड. सो वी विल लर्न एवरीथिंग. But currently, what I want, at least you need to be expert in P2P cycle. PR बनी, PO बना, फटाक से GN बनी, इन्वेस्ट बनेगा. तो एटलीस्ट आपके एक बार 10-20 बार साइकिल चला लोगे ना, तो यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस दैट आई कैन रन दिस साइकिल. नाउ अभी क्या होगा, अब मेरा गुड्स रिसीट हो गया, राइट. अब क्या होगा, वेंडर मुझे इनवॉइस भेजेगा, भैया आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स, नाउ प्लीज मेक द पेमेंट, राइट. एज एम कंसल्टेंट, व्हाट वी डू, पोस्ट द इनवॉइस. ठीक है. The next step, post the invoice in system, right? Clear है? T code क्या है? Miro. Now, PR done, PO done, GN done. Now, last part is Miro. /n Miro is the T code. Now here, right? Invoice date. Let's suppose आज पोस्ट कर रहा हूं मैं. यहाँ पर डालूंगा मैं क्या, PO नंबर. क्यों, डेफिनेटली कोई रेफरेंस नंबर दोगे ना, आप किसके अगेंस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट. तो आपने ऑर्डर दिया था वेंडर को, राइट, उसका कोई नंबर जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर नंबर, राइट. तो उसके अगेंस्ट में आपने गुड्स रिसीव कर दिया, उसी पीओ के अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो. तो भाई मैंने इस पीओ के अगेंस्ट में, दिस इज द व्हाट अमाउंट, दिस इज व्हाट वैल्यू और व्हाट गुड्स आई हैव रिसीव्ड, राइट. नाउ अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द अमाउंट टू द वेंडर. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनवॉइस पोस्ट करते हैं. वी आर सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पोस्टिंग द इनवॉइस इन द सिस्टम, करेक्ट.
पीओ नंबर क्या है मेरा? लेट मी सेलेक्ट दैट पीओ नंबर। मेरा पीओ नंबर था, मैं आपसे ले सकता हूँ पीओ नंबर अपना में, ये रहा। Control C, go here, enter V। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनवॉइस सेलेक्ट किया, राइट, डेट डाली है, पीओ नंबर डाला है, ठीक है ना। रेफरेंस यू कैन गिव पीओ नंबर रेफरेंस, ठीक है ना, मैंने डाल दिया। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एंटर्ड इनवॉइस डेट, और मैंने यहाँ पर दिया, मैंने क्या, परचेज ऑर्डर नंबर, इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे परचेज ऑर्डर, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, ये दिया मैंने पीओ नंबर, राइट, ये किया मैंने। अभिलाष भैया तो कुछ नहीं किया मैंने। और यहाँ पर रेफरेंस में आप डाल सकते हो पीओ नंबर, विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, और आप कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली। नाउ प्रेस एंटर, कंट्रोल एस। नाउ व्हेन यू गो हियर, press enter. Now see what will happen. Scroll up, मेरे पास क्या अमाउंट आ गया, 1600 रुपीज अमाउंट आ गया, राइट। ये अमाउंट मेरा कहां से आया है, ये अमाउंट मेरा, मैं अपना पीओ ओपन करता हूं, लेट मी गो बैक। जो मेरा पीओ था अभिलाष भाई एंड संदीप सर एंड जसीम, राइट, कितनी क्वांटिटी थी मेरी, 20, पर यूनिट प्राइस क्या था, 80, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1600, राइट। इट मींस यू हैव टू पे 1600 रुपीज टू द वेंडर, करेक्ट, यही इसका मतलब तो यही हुआ ना, करेक्ट और नॉट। Yes, yes, yes. yes, बट अभी मैंने क्या लगा रखा है, मैंने टैक्स कोड भी लगा रखा है, राइट। गो टू इनवॉइस टैब, हियर आई कैन सी टैक्स कोड भी रहा है, एसबी, राइट। इफ आई गो टू टैक्सेस, तो एसबी टैक्स कोड है मेरा, let me go back, let me go to analysis, let me show you। ये मेरा राइट कितना है, 18% है ना, राइट, यही 18% टैक्स मेरा एसबी। मैंने ये लगा रखा है, नहीं लगा रखा है अभिलाष भाई, संदीप सर, जसीम, मनीषा, correct, समीर, कितना है मेरा, 18%, राइट। और 18% कितना है मेरा, ये दिखा रहा है 288 रुपीज, करेक्ट, यही है। ये आउटपुट टैक्स, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनपुट टैक्स। नाउ लेट मी गो बैक। तो भैया आपको, यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड यू हैव टू पे टैक्स एज वेल, राइट। व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल गो इनटू मीरो पार्ट एंड हियर दिख रहा है आपको टैक्स, मैं सेलेक्ट कर लिया अपना टैक्स, वॉट एवर टैक्स यू अप्लाइड इन द पीओ, सेम टैक्स को नीड टू अप्लाई हियर एज वेल, राइट। सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स। जैसे मैं करूंगा तो मेरा टैक्स का अमाउंट आ गया। See the settings we don't do the right, this settings done by fee quoting टैक्स कोड की, ठीक है ना। अभी दोनों टैक्स कोड उठा रहा है, आई डोंट नो कैसे उठा रहा है, बट आइडियली शुड पिक ओनली वन टैक्स कोड। टैक्स की टोटल वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है हमारे पास, ये दिखा रहा है, राइट, ये अमाउंट प्लस दिस वन, करेक्ट। तो लेट मी जस्ट चेक ऑन दिस वन, यहाँ पे बीएसपी लग रहा है क्या, लेट मी चेक दैट, लेट मी गो बैक। इसमें भी लग रहा है, अंडरस्टूड, एनालिसिस, दोनों में लग रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं दोनों में टैक्स कोड हमारा क्या लग रहा है, 12% लग रहा है, ठीक है ना, 12% लग रहा है आउटपुट में, इनपुट में, ठीक है ना। टोटल मिला के हमारा हो गया 30%, राइट। तो टोटल कितना होगा 30%, मतलब 480 रुपए। आपको इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दी सेटिंग्स नीड टू बी डन बाई फ्रीकोटी। अभी हम ये समझ लेते हैं, जो हमारा टैक्स है टोटल एसबी वाला, ठीक है ना, टोटल हमारा कितना लग रहा है, दिस और दिस, राइट। टोटल कितना हो गया 30%, करेक्ट और नॉट, टेल मी, समझ में आया वाला पॉइंट। It might be 12%, might be 18%, might be 5%, right? It all will be done by fee quoting, tax code definition and define. Clear? अभी यहाँ पर हमारा टैक्स कोड, टोटल टैक्स कितना लग रहा है हमारे पास, 30%। दिख रहा है लॉस में, ये कितना लिख रहा है अमाउंट, 480 रुपीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, संदीप सर, 480, क्लियर है वाला पॉइंट। Yes, yes. टैक्स लग रहा है 30% हमारा। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल गो इनटू पीओ स्क्रीन, सेलेक्ट किया मैंने कैलकुलेट टैक्स, मेरे पास टैक्स भी आ गया लिखा हुआ कि आपको 480 रुपये टैक्स भी देना है, राइट। जो आपने माल खरीदा हुआ है 1600 रुपए का, उस पर आपको कितना टैक्स देना, 30%, दैट इज 40 रुपीज। नाउ टोटल अमाउंट यू हैव टू पे 2080,
वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस टैक्स। अभी मैं यहां पे डाल देता हूं अमाउंट 20, अभी डाल, अभी आपको दिखाता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। एंटर किया मैंने, स्क्रॉल अप, 1600 हो गया, ठीक है, याद है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को दिख रहा है सिंपल अमाउंट कि वॉट एवर गुड्स आई हैव रिसीव्ड, उसकी जो वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1600, राइट। बट आपने जो खरीदा हुआ है आइटम, राइट, उस पर कुछ टैक्स भी लगेगा। इट माइट बी 30%, इट माइट बी 20%, राइट, इट माइट बी एनी वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। Now what I'm doing, I'm going here, I'm clicking on this calculate tax. अब मेरे एसबी की वैल्यू यहाँ पे 30%, राइट, तो इट विल कैलकुलेट फॉर 80 रुपी, राइट, माइट बी 12%, 18%, इट माइट बी एनी वैल्यू, राइट, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो अभी टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1600 प्लस 480 टैक्स की वैल्यू। दैट पॉइंट इज क्लियर कि आपको यू हैव टू पे 1600 पीओ वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू। जो आइटम आप परचेज कर रहे हो दैट इज टैक्सेबल। यू गॉट दैट पॉइंट गाइस, समझ में आया वाला पॉइंट। Clear. Clear. नाउ लेट मी गो हियर। नाउ अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैलेंस 2080। इफ आई एंटर दैट सेम अमाउंट 2080, say here balance will be 0। let me scroll up, ये कितना हो गया मेरे पास, बैलेंस 0 हो गया। so what we did, we simply entered the amount that we have to pay to the vendor in this amount field कि भैया we have to pay 2080 rupees to the vendor, 1600 for the material that we purchase and 480 rupees we are paying the tax to the vendor। ये 0 हो गया। बट अभी मेरे को रेड दिख रहा है क्योंकि एरर आ रही, राइट। अभी what you have to do here, you have to click on business place। बिजनेस प्लेस मतलब आप बिजनेस कहां पर कर रहे हो, ठीक है ना। एक तरीके से आपका जीएसटी नंबर होता है ना कि कहां पर आप बिजनेस कर रहे हो। तो मैंने अभी बनाया बनाया अभी एक, एक अपने कंपनी कोड के लिए, राइट। आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट दैट एज वेल, ओके। प्रेस एंटर। अब देखो मेरे पास सारे रेड सिग्नल सारे हट गए। समीर, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. जसीम, now it is green। enter the बिजनेस प्लेस मतलब सिंपल आप कहां पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, कहां का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल, ओके। अब जहां बिजनेस कर रहे हो, ऑल्दो दिस टर्म्स आल्सो कम्स अंडर फीको ओनली, ओके। now what you have to do is click on this simulate button। go here, click on this simulate button। control S। now when I go here simulate button, now see 1600 rupees मेरे पीओ वैल्यू, राइट। ये मेरा क्या है, टैक्स लग रहा है, राइट। मैं टैक्स 2000 लगा दिया इसमें एसपी का, ठीक है ना, 18.12 टोटल 30 टैक्स लग रहा है। सो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है इस वेंडर को, ये मेरा वेंडर था, राइट, मेरा वेंडर ये वाला है, करेक्ट। तो कितना अमाउंट पे करना है, 2080। 16 से किसके लिए आपने गुड्स खरीदा था, बाकी ये अमाउंट क्या है आपका, टैक्स का अमाउंट है। दैट्स मेक सेंस। ये क्लियर हो गया गाइस, बताओ मेरे को, यू गॉट दिस। Yes, Atin. ये आपकी पूरी साइकिल है P2P की। मैं नेक्स्ट स्टेप तब लूंगा व्हेन एवरीबॉडी फ्रॉम आवर टीम ना ये रनिंग कंप्लीट P2P साइकिल। क्यों P2P साइकिल रन नहीं हुई ना तो यू विल स्टक समवेयर, राइट, तो आपका आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं पाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये रन कराओगे ना, देयर विल बी लॉट ऑफ इशू विल फेसिंग जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई कोई सेटिंग्स होती हैं दैट वी आल्सो हैव टू डू, आई विल बी देयर। कल मैं किसी के भी कंपनी कोड रैंडमली उठा के ना
I will do all the settings right in front of all of you. So accordingly, you same settings you can also do. ठीक है? Now let me post the document as well. Post this. अभी error आ रही है क्या? Some issue is there. What issue? Post. जो error भी नहीं दिख रही कोई. Let me do this. Let me check what error we are getting. GL account 126 not defined in company code BAGF. Okay. ओके अकाउंट मैंने कहाँ से लिया? ओके दैट इज टैक्स वाला अकाउंट. ये जीएल अकाउंट के बड़े इशू आ रहा है ये. नो इशू वी कैन डू दिस. आई थिंक मुझे शायद ना फीको भी सीख लेना पड़ेगा. मुझे इतना सारे इशू आते हैं ना फीको के. लेसन एफएस 00 अंडरस्टूड. लेट मी create BGF. Filters group or data. Done. Now let me do that once again. Let me give it a try. Slash n Miro reference text. Simulate. Error. Let me check that what error we had now. Go to message. No tax on sales purchase allowed for account. No, what is this? Let me quickly check this. ये सारा ना फीगो का राइट. हमारे इसमें कोई भी रोल नहीं. ठीक है ना? नथिंग फ्रॉम अमेंट. लेट मी गो बैक. बट लेकिन गाइस अभी इतना समझो. इतना सही. ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा हमारा. ठीक है ना? दैट्स इट. बस जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन पोस्ट बटन. ओके गाइस यहाँ पर पोस्ट बटन क्लिक कर दोगे हमारा काम खत्म हो जाएगा. ठीक है ना?